dear students. Our next topic is input-output functions. So basically functions हमारा क्या होता है? It is a set of instructions used to perform a specific operations or task. So in C language provides us console input-output functions that allows us to read the input from the keyboard by the user and display the output at the user screen. So input-output functions हमारे क्या होते हैं? जो कंप्यूटर हम यूज़र से इनपुट ले एंड हमें आउटपुट प्रोवाइड करे. सो ये दो टाइप के होते हैं, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस. सो जैसे नाम से ही पता चलता है, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस मतलब ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में होते हैं. इनके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं टू टेक द इनपुट एंड प्रोड्यूस द आउटपुट. ओके, एंड अनफॉर्मेटेड में हमारे क्या होते हैं, कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज नहीं होते. दे आर वेरी इजी टू यूज. सो ये हमारी कंपैरिजन टेबल है. फॉर्मेटेड फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, प्रिसाइज कंट्रोल ओवर फॉर्मेटिंग वाया स्पेसिफायर्स. लाइक अगर हमारा इंटीजर है तो हम %d यूज करते हैं, कैरेक्टर है तो हम %s यूज करते हैं, सॉरी %c यूज करते हैं, स्ट्रिंग है तो %s यूज करते हैं. इन द सेम वे अनफॉर्मेटेड फंक्शंस में ऐसा कुछ यूज नहीं होता. We just use the specifiers. Okay, input output in formatted functions works with multiple data types, but in unformatted functions it primarily works with characters और strings के लिए ही ये mainly use होते हैं. formatted के example है printf, scanf. unformatted के example है put char, get char, puts. unformatted functions in C work with raw data and do not allow the user to specify how the input or output should be formatted. This means they handle data as is without the need for format specifiers like %d, %f, %s used in formatted functions. Instead of interpreting or structuring the data, unformatted functions simply read or write raw characters or strings. These functions are simple and direct but lack the ability to control the data displayed or interpreted. Okay, so हम देखते हैं formatted input output functions कौन कौन से हैं. अब पहले formatted input output functions allow to supply input or display output in user desired format. Formatted input output operations contains format specifiers in their syntax. Format specifiers हमारे %d, %s, %f. Okay, they are used for storing data more user friendly. They are used with all data types. Okay, for example printf and scanf. printf का क्या यूज होता है, स्क्रीन पे आउटपुट दिखाने के लिए. scanf का रन टाइम पे वैल्यूज एंटर करवाने के लिए. नेक्स्ट वी हैव इज unformatted input output functions. These functions do not allow to supply input or display output in user desired format. Unformatted input and output functions do not contain format specifiers in their syntax. They are used for storing data more compactly. They are used mainly for character and string data type. तो ये हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, get ch, get che, get char, put ch, put char, get s and put s. So let's see them one by one. Okay, printf and scanf का क्या सिंटेक्स होता है, printf फॉर्मेट स्ट्रिंग देन आर्ग्यूमेंट, एंड scanf में हमारे पास क्या होता है, scanf फॉर्मेट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल printf hello C language and double quotes close, braces close and semicolon at the end. Okay, printf अगर हमें कोई आउटपुट प्रिंट करना है, देन printf ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर अमाउंट इज इक्वल टू %d, देन डबल कोट्स क्लोज कॉमा amt. हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा जिसमें कोई रिजल्ट स्टोर होगा या हमें कुछ प्रिंट करवाना होगा, देन ब्रैकेट्स क्लोज. देन scanf ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर दैट इज %d, देन कॉमा, देन एड्रेस ऑफ एज, जहाँ पे हमने वो एज एंटर करवाई होगी या यूजर जो एज एंटर कर रहा होगा उसको मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमने scanf का यूज किया है. देन ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन क्लोज.
नेक्स्ट है हमारे अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। इसमें हमारे क्या क्या है, कैरेक्टर इनपुट फंक्शंस जो कि है गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट सी एच ए आर। तीनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। गेट सी एच में हमारा क्या होता है, रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एट द कंसोल विदाउट इकोइंग इट। गेट सी एच ई में क्या होता है, रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एट द कंसोल एंड इकोइंग इट। एंड गेट सी एच ए आर में क्या होता है, reads a single character from the user at the console and echoing it but needs an enter key to be pressed. Okay? इसका मतलब हम समझेंगे, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं get चे। ओके, ये इसका सिंटेक्स है। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। ये हमने एक प्रोग्राम लिखा है, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। वॉइड मेन से हमने फंक्शन स्टार्ट किया, करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस क्लोज। cher कैरेक्टर में हमने एक ch वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। printf एंटर एनी कैरेक्टर, ch इज इक्वल टू गेट चे, रीड अ कैरेक्टर एंड इको इट टू द कंसोल। गेट चे हमारा क्या करता है, इको करता है, रीड्स अ कैरेक्टर एंड इको इट। तो इसमें हमारा printf में हमने यू हैव एंटर्ड द कैरेक्टर एंड देन पुट ch से हमने आउटपुट प्रिंट करवाया एंड ch वेरिएबल हमने कॉल किया, प्रिंट द एंटर्ड कैरेक्टर। तो इसका आउटपुट हमें क्या मिला, एंटर एनी कैरेक्टर a, यू हैव एंटर्ड a। इसमें क्या हुआ, हमने a जैसे ही एंटर किया हमें नीचे भी a डिस्प्ले हो गया एक साथ। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, गेट ch, e था अभी, गेट ch है। ओके, सेम कोड है, ch की जगह हमने जस्ट चे की जगह हमने ch यूज किया है। ओके, कैर ch, printf एंटर एनी कैरेक्टर, ch इज इक्वल टू गेट ch, printf यू हैव एंटर्ड एंड देन यहीं पे हमने ch को प्रिंट करवा दिया। इसमें हमें क्या किया है, आउटपुट सेम है, एंटर कैरेक्टर a, यू हैव एंटर्ड a। इसमें हुआ क्या, एट द रन टाइम एंटर अ कैरेक्टर हमने a एंटर किया बट उस टाइम हमें यहाँ पे a नहीं दिखेगा। देन व्हेन वी प्रेस द एंटर देन हमें दोनों जगह पे a दिखेगा, लाइक विदाउट इकोइंग उसने वैल्यू स्टोर कर दी। देन आउटपुट में हमने जब एंटर प्रेस किया तो हमें यू हैव एंटर्ड a विजिबल हुआ। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज गेट cher। गेट cher में हमारा क्या होता है, एंटर अ कैरेक्टर, देन हमने हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन कैरेक्टर ch, printf एंटर अ कैरेक्टर, ch इज इक्वल टू गेट cher, printf में हमने ch को कॉल कर दिया, रिटर्न 0 एंड करली ब्रेसेस क्लोज। इसमें हुआ क्या है, इफ यू एंटर b एंड प्रेस एंटर द आउटपुट विल बी डिस्प्लेड। एंटर अ कैरेक्टर हमने जब b प्रेस किया तो वो एंटर अ कैरेक्टर के बाद हमें b वहां पे दिखेगा एंड देन हमने एंटर प्रेस करना है, देन हमें आउटपुट विजिबल होगा। ओके, देन दोनों में हमें b दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारा गेट cher। ये हमारा होता है जब हमें एक स्ट्रिंग चाहिए होता है। ओके, देन हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वॉइड मेन में हमने कैरेक्टर नेम नाम की एरे डिक्लेयर कर दिया ऑफ 20 वर्ड्स। printf एंटर योर नेम, गेटस में हमने नेम को कॉल कर दिया, printf यू हैव एंटर्ड एंड देन पुटस में हमने आउटपुट के लिए नेम को फिर से कॉल किया। तो हमें आउटपुट में क्या मिला, एंटर योर नेम अंकित, यू हैव एंटर्ड अंकित। ओके, so let's have a look at all the three differences. ओके, सो गेट ch में क्या होगा, जो हमारे आउटपुट में एंटर एनी कैरेक्टर, यहाँ पे हमने जो भी कैरेक्टर एंटर किया होगा नहीं दिखेगा। देन हमें ऑटोमेटिकली यू हैव एंटर्ड कैरेक्टर s एज सुन एज वी प्रेस द एंटर हमें ये दिखेगा। गेट che में क्या होगा, हम जैसे ही एंटर एनी कैरेक्टर a करेंगे वो एक एको होते हुए यू हैव एंटर्ड a हमें शो होगा। एंड गेट cher में क्या होगा कि enter any character, for example we have entered D and the cursor will be located like this and as soon as we press enter then only हमें next line में output show होगा। okay, next we have getas and puts and इसमें similarly हम जैसे ही enter दबाएंगे हमें डिस्प्ले होगा।